ہماری سیکیورٹی ٹیم جس میں کہ لیڈر ہیں عثمان انور صاحب FIA کی ڈائریکٹر، ہمارے اپنے سیکیورٹی مینیجر کرنل اعظم اور ہائی کمیشن سے ان کے ڈپٹی ہائی کمشنر عبید نظامانی صاحب، تینوں کے تینوں آج نکل گئے ہیں اور میرے خیال سے ایک آدھ گھنٹے میں دھرمشالہ پہنچ رہے ہیں۔ دھرمشالہ میں ان کی ملاقات کا انتظام آلریڈی ہو گیا۔ وہ ملیں گے BCCI کے سیکیورٹی مینیجر سے، وہ ملیں گے ہماچل پردیش کی جو سیکیورٹی مینیجر ان سے ملیں گے، وہ ہوٹل دیکھیں گے، وہ اسٹیڈیم دیکھیں گے، وہ جو بس روٹ ہے وہ سب دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے تاثرات ہم کو بھیجیں گے اور میں ان کو چودھری نثار صاحب کے پاس بھیج دوں گا۔ اور میرے خیال سے کل امکان یہی ہے کہ وہ اپنے یہ جو راؤنڈ ہے وہ پورا کر کے دہلی چلے جائیں، اس لیے کہ دہلی میں بھی ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ تو یہ پروگرام ہے ان کا۔ ہمیں امید ہے کہ ٹیوزڈے منگل کی شام تک ایک رپورٹ ان کی طرف سے آ جائے گی۔ تو پھر فیصلہ جو ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، یہ رپورٹس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ ہوگا حکومت کی طرف سے، ہمارا نہیں ہوگا، حکومت کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ فیصلہ مجھے امید یہ ہے کہ کل شام تک انشاءاللہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ رچرڈسن چیف ایگزیکٹو ICC نے ہم کو ایک ای میل بھیجا ہے، اور اس ای میل میں انہوں نے ذکر کیا ہے نمبر 1 کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈائریکشن نکالا ہے جس کے تحت سیکیورٹی بائی دی پروونشل گورنمنٹ یعنی ہماچل پردیش گورنمنٹ کو کرنا لازمی ہوگی۔ یہ ایک ان کا آرڈر ہے۔ نمبر 2 کہ انوراگ ٹھاکر صاحب جو کہ BJP کے خاص رکن ہیں اور سیکرٹری جنرل ہیں BCCI کے، انوراگ ٹھاکر صاحب نے ملاقات کی ہماچل پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں، اور ان سے جا کے کہا کہ جی آپ کو یہ سیکیورٹی کی پوری سیکیورٹی دینی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر ہماچل پردیش نے کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی گارنٹی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے، اور ICC ہم سے کہہ رہا ہے کہ ٹھاکر صاحب کے ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم سیکیورٹی آپ کو دیں گے۔ تو یہ انہوں نے ہم کو کنوے کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج سے 2-3 دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے بھی ایک جنرل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری اگر ضرورت ہوئی تو ہم پیراٹروپرز وہاں بھیج دیں گے۔ یہ تمام چیزیں لکھ کر ہمیں دی ہیں ڈیوڈ رچرڈسن ICC سیکرٹری جنرل نے۔ تو اس کا بھی میں نے ای میل جو ہے وہ میں نے چودھری صاحب کو بھیج دیا ہے، لیکن اصلی جو بات ہوگی وہ ہماری سیکیورٹی ٹیم کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ ہوگی، اور وہ آج شام کو وہاں پہنچ جائیں گے، میرے خیال سے ایک آدھ گھنٹے میں پہنچنے والے ہوں گے، اور وہاں پر بات چیت کریں گے، دیکھیں گے تمام چیزیں، اور اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر اب وہ ہم کو بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے آن دا گراؤنڈ۔ دوسری طرف ہمارے ہائی کمشنر باسط صاحب جو ہیں وہ بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ راجناتھ سنگھ صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو وہ ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے۔ تو یہ سچویشن ہے سیکیورٹی کی۔ فیصلہ حکومت کرے گی، ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی ٹیم کرے گی۔ تو میرے خیال سے امید تو یہ ہے کہ کل شام تک ہو جائے۔ اس وقت سے پہلے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ حکومت نہ کر لے، اور up to that time both teams, women's team and men's team are on hold۔ وہ ابھی نہیں جائیں گے جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ نہ مل جائے۔ تو یہ ایک آپ کو بریف کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ دوسری طرف سے یہ جو سلیکشن وغیرہ کی بات چیت چل رہی تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ
जो टीम एशिया कप के लिए गई थी उसमें 2 चेंजेस हुए हैं, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम। 2 चेंजेस हुए हैं। नंबर 1, एक तो ऑलरेडी हो गया है, खालिद लतीफ़ आ गए हैं वर्ल्ड कप के लिए और इफ्तिखार बरतरफ हो गए। दूसरे अहमद शहजाद आ गए हैं और खुर्रम मंजूर अलग हो गए हैं। तो ये 2 चेंजेस हैं और ये हमने आईसीसी को, इसलिए कि लास्ट डे कल था, हमने उनको बता दिया है कि 2 चेंजेस हम कर रहे हैं टीम में, तो वो भी हो गया है। उसके अलावा आप पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी वो हो गए जी। देखिए, शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है, हम उसको गौर से देख रहे हैं, लेकिन हम उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, सीधी बात ये है। उस बयान में मैंने सुपरफिशियल व्यू जो है वो ये है कि कोई ख़ास ऐसी गलत चीज़ नहीं कही है। आखिर देखिए, शाहिद अफरीदी कप्तान है और वो जब मीडिया को एड्रेस करते हैं तो उनका एक किस्म से हक़ बनता है कि वो बताएं कि उनके क्या तासुरात हैं। सर, ये हक़ नहीं बनता कि पहले वो बोर्ड को बताएं फिर वज़ीर-ए-आज़म को? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक आई मीन मुँह बंद करके तो नहीं रख सकते उन्हें। वी डोंट हैव टू, लगाम तो नहीं लगानी, पर शायद अफरीदी पे पाबंदी लगा दी मीडिया पे बात करने की। किसकी खबरें चल रही हैं, शायद अफरीदी पाबंदी लगा दी है मीडिया पे बात करने से। नहीं, हमने एनओसी लेना होता है ना जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो इजाज़त लेते हैं। हाँ, इजाज़त और या तो ये देते हैं या नहीं देते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि नहीं अभी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब, सिलेक्शन कमेटी से आपने पूछा जो टीम सेलेक्ट की थी एशिया कप के लिए, खुर्रम मंजूर को किस बेस पे भाई टीम में पूछा है, उन्होंने अपने रीजंस भी दिए हैं, आपको भी रीजंस दिए हैं, लेकिन अब और भी पूछताछ करेंगे। ये तो अब देखिए, जो कमेटी बनी है वो भी इस पर जायज़ा लेगी, हम भी जायज़ा लेंगे, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं होगा। ये वर्ल्ड कप हो जाए उसके बाद ही फैसले करेंगे। खान साहब, इंक्वायरी कमेटी की तश्कील की गई है, उसका इजलास कब हो गया ये बता दें। दूसरा ऑन गोइंग है, मेरे ख्याल से आज कल में हो रहे हैं उनके। वसीम अकरम ने इसकी मुखालफत की है कि ये नहीं बनी चाहिए थी, बड़ी चाहिए। भाई हर शख्स के अपने ओपिनियन होते हैं, मैं वसीम अकरम का मुँह तो बंद नहीं कर सकता, अपने अपने ख्यालात होते हैं। आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। वसीम अकरम बहुत ही एक एक्सपीरियंस कप्तान रह चुके हैं, उनका कहना जो है वो अपनी जगह है। बहुत सी बातें की जा रही है मीडिया में, एक तो सलमान भट्ट को लेके, दूसरा यूनुस का वकार यूनुस के हवाले से कि जिनको हटाने का फैसला हो गया, फिर चीफ सेक्रेटरी के हवाले से। नहीं, देखिए, फैसले हुए हैं या सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि सलमान भट्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर्स का भी ये ख्याल जो है वो दुरुस्त है, और लेकिन सलमान भट्ट को हमने निकाला नहीं है, वो बल्कि रेंज में है, रेडार पे है, आइंदा के लिए देखा जाए। सर, ये जो आपने 5 रुकनी तहकीकाती टीम बनाई थी जी, जिसमें आप सारे लोग बड़े मशहूर हैं और सारे के सारे बड़े नाम हैं, वो अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी, और अगर उसमें कोई गिल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये रिपोर्ट जब पेश हो जाएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि क्या एक्शन लेना है। ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से हफ्ते भर में हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह। बहुत कम वक्त है उनके लिए। डोमेस्टिक कमेटी के चेयरमैन थे शकील शेख को आपने उसका भी हेड बना दिया, हालांकि उनकी खुद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनका होना मेरे ख्याल से ज़रूरी था। उनके डिसीजन, उनके क्रिकेट अंदर सारे डिसीजन उनकी उसी कमेटी के चल रहे हैं ना। आप उसे एक कैप्टन बनाते हैं, एक कैप्टन आप बनाते हैं, बाकी सारे डिसीजन कमेटी करती है, उसी के हेड को आप फिर बना दिया। नहीं, मेरे ख्याल से क्रिकेट कमेटी की जो तश्कील हुई है, रिकमेंडेशंस होगी, बस वो ये है कि वो अपनी ख्यालात वगैरह मुझे बताएंगे, डिसीजन तो मैं लूँगा। चेयरमैन साहब, कहा यह जाता है कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान का डोमेस्टिक का जो ढांचा है हाँ, वो दुरुस्त नहीं है, हर दफ़ा उसको तब्दील करते हैं। क्या कभी इस कमेटी के सरबराह को भी तब्दील कर लें, शायद ठीक हो जाए? नहीं, देखिए, ये ओवरनाइट ठीक नहीं होता है। देखिए, कितने दिन से 26 टीमें खेल रही हैं, कितने दिन से, मैं तो जब चेयरमैन नहीं था उस वक्त से भी कह रहा हूँ कि भाई 26 टीमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, आपका वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इस वजह से पहले ही सीज़न में मैंने 26 से 16 टीमें कर दी ताकि कंपटीशन ज़्यादा हो।
इमरान खान का कहना मुझे याद है कि जब वो शेफील्ड शील्ड खेलते थे तो लगता था कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इतना उसमें टेंशन और कंपटीशन होता था। और वो यही चाहते थे कि 7-8 टीमें हों। खैर इस वक्त 7-8 तो नामुमकिन है, पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10-12 टीमें होना चाहिए। अब हमने 16 कर दी हैं 26 से, तो एक तो ये हमने कदम उठाया है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी यानी ग्रास रूट्स की जो लेवल है, क्लब, स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ कमी है, उसको हम ठीक करने के लिए अब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। आप देखिएगा अगले 2-3 महीने में हम प्रोग्राम अपना निकालेंगे जिसमें कि स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और क्या नाम है कॉलेज क्रिकेट, ये सब सामने आए ताकि हमारे यहाँ एजुकेटेड खिलाड़ी पैदा हो। हाँ सर, ये बताइएगा बासित अली को बैटिंग कोच बनाने की बातें हो रही थी, उसमें कितनी नहीं, वो गलत है, किसी को भी नहीं बनाया। ये बताएं कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसका क्या मयार है? एक मौके पर अहमद शहजाद को ड्रॉप कर दिया और खुरम मंजूर को डाल दिया। अब एक गाँव खुरम मंजूर फ्लॉप हो गए और अहमद शहजाद, हालांकि आपने अहमद शहजाद को रिकमेंड किया हुआ था कामरान अकमल को, इस हवाले से सिलेक्शन का क्या मयार? भाई आप उनसे पूछिए, मैं भी पूछता हूँ, और ये कमेटी जो है ये भी पूछेगी कि आपका मयार क्या था। ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, की बात। बात हो रही है बड़े इवेंट के बाद एक तहकीकाती कमेटी बनती है। हमने 2003 के वर्ल्ड कप में, 2007 के वर्ल्ड कप में, 2011 के वर्ल्ड कप में, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद भी बना। अब एशिया कप में क्या इन कमेटियों की जो सिफारिश है तो उस पर अमल दरामद भी आज तक हुआ है, लेकिन आप देखिएगा कि जो इनकी सिफारिशात होंगी उस पर हम अमल ज़रूर करेंगे, अगर वो मैं समझता हूँ कि सही। हाँ सर, पीएम को कब तक रिपोर्ट भिजवा देंगे? ये रिपोर्ट आ जाए उसके बाद थैंक यू। बात हो रही है क्लब क्रिकेट की। पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 170 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन काम कर रही है, एसोसिएशन मिलकर। सिवाय 2 एसोसिएशन से किसी शहर में अब तक लाहौर, कराची ऑन रिकॉर्ड है कि क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप पिछले 5 साल में नहीं हो सकी। तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? इस पर एक्शन लेंगे, इसलिए कि उनके जो बना हुआ है उनके लिए जायज़ा का ढांचा जो बना है उसमें ख़ास तौर से लिखा हुआ है कि आप इतनी क्लब चैम्पियनशिप्स कराएंगे, इतनी स्कूल चैम्पियनशिप कराएंगे। अगर वो नहीं की तो हम उनका जायज़ा लेंगे, हम उनसे पूछेंगे आपने क्यों नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैचेस देखने आप तो जाएंगे, आपके साथ किसी और को भी इनवाइट किया गया? मैचेस देखने तो अभी तक तो मैंने फैसला नहीं किया कि मैं जाऊंगा और किसी को इनवाइट नहीं किया। नहीं, ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने शशांक मनोहर साहब को खत लिखा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं और खेलें, इसलिए कि धर्मशाला में ख़ास तौर से कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, वो पठानकोट की वजह से, तो हम उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। ये इतना मैंने लिखा था। उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है कि हम कलकत्ते में या चेन्नई में या कहीं मोहाली में हम आपको खिला देंगे, ये उनकी तरफ से नहीं। वो कहते जा रहे हैं कि हम धर्मशाला में ही करेंगे, तो हम धर्मशाला जाएंगे। जी, आपने इनकार किया खेलने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं किया, बल्कि हमने एक सजेशन दी थी, अगर आप चाहेंगे तो हम कंसिडर करेंगे।